کہتے ہیں ملک عراق میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام ابی موسیٰ تھا۔ وہ اس بھری دنیا میں اکیلا تھا۔ اس کے ماں باپ تبھی مر چکے تھے جبکہ وہ ابھی ایک چھوٹا بچہ تھا۔ ایک دن موسیٰ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ صبح سے شام تک وہ لکڑیاں کاٹتا رہا۔ پھر جب اندھیرا پھیلنے لگا تو موسیٰ نے لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ وہ دن بھر کی محنت سے پوری طرح تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر یہاں سے چل دوں گا۔ یہ سوچ کر موسیٰ برگد کے ایک گھنے درخت پر چڑھ گیا جہاں پر اس نے شاخوں کو ملا کر ایک جھولنا سا بنایا ہوا تھا۔ برگد کے پیڑ پر جھولے میں چڑھتے ہی موسیٰ کو نیند آ گئی کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ گرمیوں کے دوپہر کے وقت اسی جھولے میں سویا کرتا تھا۔ آج بھی موسیٰ شاخوں اور پتوں سے بنے ہوئے اس جھولے میں لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ موسیٰ کو نیند آ گئی۔ سورج غروب ہوا۔ جنگل کو گفت اندھیروں نے اپنے آغوش میں لے لیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد چاند نکل آیا۔ موسیٰ ابھی تک بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ اچانک آسمان کی طرف سے ایک سفید رتھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس رتھ کو 4 گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ ان چاروں گھوڑوں کی کمر پر رنگین پر تھے۔ یہ پرستان کے اڑنے والے گھوڑے تھے۔ اس رتھ میں پرستان کی ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس رتھ کے پیچھے کئی اور رتھ بھی تھے جن میں پریاں سوار تھیں۔ یہ سب رتھ زمین پر اتر آئے۔ ملکہ پری رتھ سے اتری اور بولی فوراً جشن کا اہتمام کیا جائے۔ ساری پریاں کام میں لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل کا سما پیدا ہو گیا۔ تلسمی فانوس روشن ہوئے۔ اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اگر وہاں کوئی سوئی گرتی تو وہ بھی فوراً ہی مل جاتی۔ برگد کے درخت تلے ملکہ کا تخت بچھایا گیا اور پریاں ناچنے لگی۔ پریوں کی آواز اس قدر میٹھی تھی کہ پرندوں کو بھی مزہ آ گیا۔ موسیٰ لکڑہارا جو کہ ابھی تک سو رہا تھا، گانے بجانے کی آوازیں سن کر جاگ پڑا۔ اس نے جب خوبصورت پریوں کو ناچتے گاتے دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پہلے تو اس کے دل میں خیال آیا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی آنکھیں ملی، دانتوں تلے انگلی دبائی، مگر سب کچھ ویسا ہی رہا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ موسیٰ سوچنے لگا آخر یہ پریاں اس جنگل میں کہاں سے آ گئی؟ موسیٰ کے دل میں آیا یہی سوال پریوں سے پوچھا جائے، لیکن اس نے سن رکھا تھا کہ اگر پریاں کسی انسان کو دیکھ لے تو وہ قید کر کے پرستان لے جاتی ہے۔ اسی لیے وہ چپ چاپ پڑا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ آدھی رات تک پریوں کا یہ جشن چلتا رہا۔ پھر پریوں کی ملکہ تخت سے اٹھی اور دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کہنے لگی شہزادہ نیکولا کو ہمارے حضور پیش کیا جائے اور دستور کے مطابق 15 کوڑے لگائے جائے۔ یہ حکم سنتے ہی چند پریاں ایک رتھ سے پری ذات شہزادے نیکولا کو وہاں لے کر آئی اور درخت سے باندھ دیا۔ ملکہ کے اشارے پر ایک پری نے کوڑا نکالا۔ کوڑا ہوا میں لہرایا اور سڑاپ کی آواز کے ساتھ شہزادے نیکولا کو ایک کوڑا مارا گیا۔ شہزادے کی چیخ نکل گئی۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں کوڑا اور اسی طرح سے 15 کوڑے لگائے گئے۔ ہر کوڑے کے بعد شہزادے کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل رہی تھی۔ موسیٰ درخت پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ شہزادے پر ظلم اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی اور درخت سے چھلانگ لگا کر ملکہ پری کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پریاں تو خوف کے مارے چیخنے چلانے لگی۔ انسان انسان، ملکہ پری نے گرج کر کہا اے انسان کون ہے تو اور یہاں کیسے آ گیا؟ موسیٰ بولا میں ایک غریب لکڑہارا ہوں۔ اس درخت پر سو رہا تھا کہ گانے بجانے کی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں خاموش رہا مگر اس مظلوم شہزادے پر ظلم ہوتے دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ اے ملکہ پری تم اس قدر سنگدل کیوں ہو؟ اس بیچارے شہزادے سے کیا غلطی ہوئی کہ اسے اس قدر کوڑے مارے جا رہے ہیں؟ ملکہ پری نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا تم مجھے سنگدل کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا ہی بیٹا ہے اور میں ماں ہو کر بھی اسے یہ سزا دینے پر مجبور ہوں کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے۔ پرستان میں غلطی چاہے شہزادے سے ہو یا پھر مزدور سے، سب کو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے۔ تمہارے دنیا کے قانون کی طرح نہیں کہ طاقتور اور دولت مند بچ نکلتا ہے۔ تم صحیح کہتے ہو ملکہ پری، موسیٰ لکڑہارے نے کہا۔ طاقتور اور دولت مند وقتی طور پر تو سزا سے بچ سکتا ہے
इस दुनिया की अदालत से तो रिहा हो सकता है, मगर एक और बड़ी अदालत भी है जहाँ सही इंसाफ होता है। वो अदालत खुदा की है। अच्छा, तुम ये तो बताओ कि आखिर शहजादे से क्या गलती हुई है? परी मलका बोली। इस अहमक ने सब्ज देव की चिकनी चपड़ी बातों में आकर शाही मोती उसके हवाले कर दिया। ये इतनी बड़ी गलती है कि परस्तान का वजूद खतरे में पड़ गया है। हमारे कानून के मुताबिक परस्तान का बादशाह वही बन सकता है जिसके पास शाही मोती हो। अब जो ही मैं मरूंगी तो सब्ज देव परस्तान का बादशाह बन जाएगा। वो जालिम और खूनखार देव परस्तान का बादशाह इसलिए बनना चाहता है कि परस्तान में पैदा होने वाली फसलें और फल उसके कब्जे में आ जाए और वो उन्हें अपने साथी देवों में बांट दिया करे। इस तरह परियां भूखी प्यासी रहकर मर जाएंगी और परस्तान परियों से खाली हो जाएगा और इस तरह से वो देव परस्तान पर कब्जा कर लेंगे। ये तो वाकई बहुत खतरे की बात है। मूसा ने सर को हिलाकर बोला। इसीलिए इस शहजादे को चांदनी रात में जमीन पर लाकर कोड़े मारे जाते हैं। मलका परी ने कहा, अच्छा तो क्या सारी परियां मिलकर सब्ज देव से वो मोती नहीं छीन सकती? नहीं, वो बहुत ताकतवर है। फिर उस तक पहुंचने के लिए कोई भी अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता। ये सुनकर मूसा लकड़हारा बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहां तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है? हाँ, यहाँ से सैकड़ों मील शुमाल में एक खंडर है। इस खंडर में वाकई एक कुएं में एक भूतनी रहती है। जो भी भूतनी के हत्थे चढ़ जाए वो उसे एक सवाल पूछती है। अगर उसे सही जवाब दे दिया जाए तो ना सिर्फ वो जान बख्शी कर देती है बल्कि आगे जाने का रास्ता भी बता देती है। अगर जवाब गलत हुआ तो खून पीकर हड्डियां तक चबा जाती है और आज तक कोई भी इसके सवाल का सही जवाब नहीं दे सका। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, सब्ज देव में कोई नुक्स है? मेरा मतलब है, क्या वो बहुत ज्यादा सोता है, खुशामद पसंद है या फिर लालची है? परी मलका बोली, वो बड़ा चालाक और होशियार है। दिन में सोना तो एक तरफ रहा, वो तो रात को भी जागता रहता है। हाँ, उसमें एक कमी है कि उसे दिन की रोशनी में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन रात के वक्त वो एक तिनके तक को देख सकता है। मूसा लकड़हारा सोच में पड़ गया। फिर बोला, हमारा दीन इस्लाम कहता है कि मुसीबत ज़दा की मदद करो, किसी के काम आना भी इबादत है। मैं इस मजलूम शहजादे को कोड़ों की अजियत से बचाने के लिए सब्ज देव से मोती हासिल करने की कोशिश करूंगा। तुम? मलका परी ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, वो तो तुम्हें चुटकी में मसल कर रख देगा। जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। मूसा लकड़हारे ने मजबूत लहजे में कहा, क्या तुम मुझे उस खंडरात तक पहुंचा सकती हो जहां वो भूतनी बुढ़िया रहती है? हाँ, मेरा रथ तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा, मगर एक बार सोच लो कि तुम मौत के मुंह में छलांग लगाने जा रहे हो। मूसा जोर से हंसकर बोला, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। देव की क्या मजाल कि वो मेरी जान ले सके। तुम यहीं ठहरो, मैं अपने गांव से चंद जरूरी चीजें लेकर आता हूँ। मूसा लकड़हारा घर आया और उसने एक चमड़ी की थैली में दही भरी, एक रस्सा लिया और एक भोंपू। तीनों चीजें लेकर वो वापस जंगल में आ गया और उड़ने वाले घोड़ों के रथ पर सवार हो गया। घोड़े उड़ने लगे। उनकी रफ्तार बेहद तेज थी। 2 घंटे तक मुसलसल उड़ने के बाद घोड़ा नीचे उतरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आ गए। मूसा छलांग लगाकर नीचे आ गया। इसके सामने टूटे फूटे खंडरात दूर तक दिखाई दे रहे थे। चांद की जर्द रोशनी में ये खंडरात दूर से उन जिनों की तरह लग रहे थे जो दोनों टांगों पर उकड़ू बैठे हो। मूसा खंडर में दाखिल हो गया। खंडरात में कब्रें बनी हुई थी, टूटी फूटी कब्रें। फिर यकायक खंडर एक डरावनी आवाज से गूंज उठी, डरावनी और खौफनाक आवाज जिसे सुनकर रगों में खून जम जाए। मूसा रुक गया और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। फिर छन छन की आवाज के साथ कुएं में से वो भूतनी बुढ़िया निकलने लगी। फिर छन छन की आवाज के साथ कुएं से वो भयानक भूतनी बुढ़िया निकलने लगी। इस भूतनी का कद दरख्तों से भी ज्यादा बड़ा था। लमूतरा चेहरा, आंख की जगह एक गढ़ा, ऐसी आंखें और बाहर को लटकी हुई लाल जुबान, सर पर कांटों की तरह खड़े बाल। काली हैबतनाक भूतनी ने दोनों हाथ सीने में मारकर दिल हिला देने वाली चीख मारी, ऐसी भयानक और डरावनी चीख कि मूसा एक बार तो दहल गया। भूतनी ने कहा, आजा ए इंसान, मेरे पास आजा ताकि मैं तेरा खून पी सकूं। ये कहते हुए इस खबीथ भूतनी की शक्ल बहुत खौफनाक हो गई थी।
मूसा ने हौसला करके कहा, ऐ भूतनी, मैं तेरे सवाल का जवाब देने के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम जैसे कई आते गए और कोई भी यहाँ से वापस नहीं गया। भूतनी बोली, ले इधर देख। ये कहकर भूतनी ने दोनों हाथ हवा में लहराए तो खंडर की एक दीवार रोशन हो गई और इस पर एक मंजर नजर आने लगा। मूसा ने देखा कि अनाज का खेत है जिसके चारों तरफ बाढ़ लगी हुई है। फिर अचानक ये बाढ़ खेत को खाने लगे और देखते ही देखते खेत खत्म हो गया। इसके साथ ही दीवार भी गायब हो गई। भूतनी ने कहा, बता इसका क्या मतलब है? मूसा ने फौरन कहा, ये तो बड़ा आसान सवाल है कि खेत और बाढ़ एक ऐसे शख्स का रूप है जो कि बददियानत है। इस शख्स के पास किसी ने अमानत के तौर पर पैसे रखवाए, मगर इसने अमानत में खयानत की और पैसे खा गया, जिस तरह खेत को बाढ़ खा गई। भूतनी के डेले तेजी से घूमने लगे। उसकी सुर्ख जुबान मुंह में चली गई और कद छोटा हो गया। इसने मरी हुई आवाज में कहा, ऐ नौजवान, तूने सही जवाब दिया है। बोल, अब तू क्या चाहता है? मूसा बोला, मैं सब्ज देव के टीले में जाना चाहता हूँ, मगर अभी नहीं, सुबह की रोशनी में। भूतनी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कहकर भूतनी ने एक कब्र पर फूंक मारी। इतनी जोरदार फूंक थी कि कब्र दरमियान से फट गई। कब्र में इंसानी ढांचा पड़ा था। वो उठ खड़ा हुआ। इसके उठने से हड्डियों की कड़कड़ाहट की भयानक आवाज पैदा हुई। इस ढांचे का सारा जिस्म तो हड्डियों का था, मगर आंखें जिंदा इंसान की जैसी थी। वो जिंदा आंखों के साथ सर झुकाया। उसकी आंखें हिली और बोली, ऐ खंडरात की मलिका, तेरा गुलाम हाजिर है, तो हुक्म कर। भूतनी ने कहा, ऐ मेरे गुलाम ढांचे, इस इंसान को सब्ज देव के किले में ले जा और फिर वापस ले आ। ढांचे ने अबू मूसा का हाथ थामा। ढांचे का पंजा बर्फ की तरह ठंडा था। ढांचा मूसा को साथ लिए जमीन में गायब हो गया। ढांचे के कहने पर मूसा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जमीन के अंदर तक सफर जारी रहा। फिर दोनों जमीन से बाहर आए। मूसा ने आंखें खोली तो सामने एक अजीम शान किला नजर आया जो काले पत्थरों का बना हुआ था। ढांचे ने कहा, यही है सब्ज देव का किला। मैं बाहर ठहरता हूँ, तुम चले जाओ। दिन का उजाला फैल चुका था। मूसा अल्लाह का नाम लेकर किले के अंदर दाखिल हो गया। किले में दाखिल होने से पहले मूसा ने एक इत्र की शीशी अपने कपड़ों में उंडेल लिया ताकि देव इसकी इंसानी बू ना सूंघ सके। किले के अंदर बागात और चश्मे थे। यहाँ मूसा को सब्ज देव भी नजर आ गया। वो फल खाने में मसरूफ था। मूसा ने भोंपू मुंह से लगाया और कहा, ओ सब्ज देव, अदब से खड़ा हो जा। हम को काब से देव का बादशाह आए हैं। भोंपू से आवाज इस तरह से निकले जैसे बादल गरज रहे हो। सब्ज देव उठ खड़ा हुआ। उसे दिन के वक्त कुछ दिखाई तो देता नहीं था। उसने हड़बड़ा कर कहा, क्या मुझसे भी बड़ा कोई और देव है? मेरा जिस्म तो इतना बड़ा है कि 10 देव एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर भी मुझसे छोटे रहते हैं। चुप रहो, हमारी शान में गुस्ताखी ना करो। मूसा भोंपू में बोला, हमारा नाम कड़वा कड़ेला देव है और तुम हमारे सामने चोटी जैसे हो। सब्ज देव घबरा गया। इसने सोचा, जब देव की आवाज इतनी गरजदार है तो वो खुद कितना बड़ा होगा। वो बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम वाकई मुझसे ज्यादा बड़े देव हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि दिन को मैं नहीं देख सकता। ओ ना अंजार देव, हमें झूठा कहता है। ले, हम तुम्हारी तरफ अपनी मूछ का एक बाल फेंकते हैं, इससे हमारे कद का अंदाजा लगाओ। ये कहकर मूसा ने रस्सा सब्ज देव की तरफ फेंक दिया। देव ने मोटे से रस्से को हाथ में टटोला तो दिल में कतराया कि इतना बड़ा देव कहाँ से आ गया। वो आजिज़ से बोला, हुजूर, मैं मानता हूँ कि आप ही सबसे बड़े देव हैं, फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। मूसा दिल में बड़ा खुश हुआ कि इसकी तरकीब काम कर रही है। मूसा ने गरजदार आवाज में कहा, मुझे शाही मोती चाहिए जो तुम परस्तान से लाए हो। जल्दी बताओ कि वो मोती कहाँ है, वरना अभी तुम्हारी गर्दन तोड़कर सारा खून पी जाऊंगा। सब्ज देव ने सोचा, जिस देव की मूछ का बाल इतना मोटा और बड़ा है तो वो मेरी गर्दन यूं तोड़ डालेगा जैसे कोई सूखी लकड़ी हो। इसीलिए चुपचाप मोती इसके हवाले कर देनी चाहिए और जान बचा लेनी चाहिए, क्योंकि जहान है तो जहान है। वो हाथ बांध कर बोला, सरकार नाराज मत हो, मैं तो आपका गुलाम हूँ, अभी मोती पेश करता हूँ। सब्ज देव ने अपने बालों से वो मोती निकालकर मूसा को दे दिया। मूसा ने 2-3 कह लगाए और किले से बाहर आ गया। ढांचे के साथ
وہ کھنڈرات میں پہنچا۔ کھنڈرات سے باہر رتھ میں پریوں کی ملکہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ موسیٰ نے موتی اس کے حوالے کیا تو وہ خوشی کے مارے ناچنے لگے۔ شہزادے نیکولائی نے موسیٰ کا بہت شکر ادا کیا اور سب پریاں اسے گھر تک چھوڑنے آئی۔ اس کے بعد موسیٰ کبھی بھی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے نہ گیا۔ اسے اب ضرورت ہی کیا تھی؟ پری ملکہ نے اسے اتنے سارے جواہرات جو دے دیے تھے کہ وہ شہر کا سب سے بڑا امیر آدمی بن گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔